कि देयर इज अ प्लेटलेट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। तो डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट के बाद जो है ना वो आपका ये होना शुरू हो जाता है, ब्लूइश स्पॉट अपीयर होते हैं और फिर उसके साथ ही उन्होंने जो सिम्टम उस पेशेंट की बताई है कि मेनार्की में देयर इज अ हैवी विजाइन पर विजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। तो ये दोनों कंडीशन इंडिकेट करती है। फिर आप टेस्ट कराते हैं तो आपका प्लेटलेट 30,000 उन्होंने बताया, ठीक है, तो दैट इज अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसमें आपकी ये वाली पिक्चर आती है। ये सारा मैकेनिज्म आपने इस तरह लिखना है कि देयर डिक्रीज प्लेटलेट काउंट दैट आर गोइंग टू कॉज हैवी परविजाइनल ब्लीडिंग और इसके अलावा पर्पलिश स्पॉट ऑन द स्किन भी टेक किया है, ठीक है। Then we have the practical to determine the clotting time. 117 पेज नंबर है आपकी जर्नल्स का। थैंक यू मैम। जी 117 पेज नंबर है to determine the clotting time. So what is the learning objective? At the end of this experiment, students should be able to determine the clotting time by capillary tube method, know the steps of clot formation, and list the clotting factors and enumerate the conditions in which clotting time is prolonged. So starting from introduction, clotting time क्या होता है? Viva question है, clotting time is the time from the onset of bleeding from any cut surface till the bleeding stops due to clot formation. ठीक है, पहले हमने bleeding time पढ़ा था कि time from the onset of bleeding from the cut surface till the bleeding stops. ठीक है, वो स्टॉप किस वजह से होती है? प्लेटलेट प्लग फॉर्म होने की वजह से होती है। लेकिन यहाँ भी हम एडिशन कर रहे हैं ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि आपका ब्लीडिंग टाइम जो है वो एक तो प्लेटलेट प्लग भी बनेगा इसमें और क्लॉट भी बनेगा, ठीक है। दो स्टेप्स, थ्री स्टेप्स आ जाएंगे कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, फिर आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और फिर आपका क्लॉट फॉर्मेशन। It depends upon the effectiveness of vasoconstriction and coagulation pathways. ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग का ट्यूटोरियल भी हो चुका है, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड द कॉमन पाथवे, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है कि कोएगुलेशन बन के कोएगुलेशन होके क्लॉट फॉर्मेशन होती है। सो व्हाट इज द clotting time? दोबारा definition, it is a time taken from the onset of bleeding till the formation of fibrin thread. ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं तो जब फिब्रिन थ्रेड बन जाता है तो दैट इज द टाइम, एक मिनट, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग टाइम। So what are the methods used in this practical to determine clotting time? Capillary tube method, glass slide method, lead bead method, Lee and White method. ठीक है, ये सारे आप सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन we use the capillary tube method in the practical lab. So what is the principle? A deep puncture is made in the skin of the subject under aseptic measures and blood is taken in the capillary tube. The length of time it takes from the onset of bleeding to a fibrin thread formation at the two broken ends of capillary tube is the clotting time. ठीक है, अभी मैं प्रोसीजर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो व्हाट इज योर apparatus required for this practical? You require the spirit swab, sterile lancet, capillary tube, stopwatch, scotch tape and filter paper. Capillary tube should be 10 to 15 centimeter long and 1 to 5 millimeter wide. ठीक है, ये dimensions बताई हैं capillary tube की। I will show you the apparatus. ये हमारा apparatus है, spirit swab, then sterile lancet, stopwatch, filter paper, और filter paper के ऊपर जो है ना ये white सी आपको जो नजर आ रही है that one, ठीक है, ये है आपकी capillary tube। तो इसकी डायमेंशन बताई है कि 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए एंड 1 to 5 मिलीमीटर वाइड, ठीक है। ये आपका सारा apparatus है। So what is the procedure? The capillary tube method is routinely used to determine clotting time in laboratories. After proper protocol, clean the tip of the finger with the spirit swab and let it dry. Give a deep prick with a sterile lancet on the finger
As soon as the drop of blood becomes visible, switch on the stopwatch. मैं आपको शो करती हूँ steps. ठीक है, आपने क्या किया, फिंगर को आपने क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट स्वैप, देन यू आर गोइंग टू प्रिक द फिंगर. उसके बाद प्रिक करने के बाद क्या करेंगे कि कैपिलरी ट्यूब को आप पकड़ेंगे और उसको लोअर पोजीशन पे रख के उसका जो वन एंड है इट विल बी प्लेस्ड इन द अपीयरिंग ब्लड ड्रॉप. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाय कैपिलरी एक्शन द कैपिलरी ट्यूब विल गोइंग टू बी फिल. आपने इसको सारा फिल कर लेना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यू विल give a wipe of the first drop of the blood and fill a clean dry capillary tube by dipping one end in the following drop of blood. Keep the other end at a lower position. Blood will fill the tube by capillary action. Hold the capillary tube in the palms so as to maintain its temperature at the body temperature. Break off 1 to 2 centimeter of tube after every 30 seconds. End point is when fibrin thread of blood will span a gap of 5 millimeter between the broken ends. ठीक है, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना कि फिब्रिन थ्रेड जब बन जाता है उसके बियॉन्ड भी हमने ब्रेक करना है या नहीं. तो अगर फिब्रिन थ्रेड की मेजरमेंट उन्होंने बताई है कि 5 मिलीमीटर का थ्रेड आपका जब अपीयर हो जाता है दैट इज द एंड पॉइंट. ठीक है, और यूजुअली ये जब हम फर्स्ट टाइम ब्रेक करते हैं ना, जब थ्रेड आता है तो यूजुअली ये इतना ही होता है कि 5 मिलीमीटर मीन्स के लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो उतना आपका वो फिब्रिन थ्रेड होता है. स्विच ऑफ द स्टॉप वॉच. द नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम बाय दिस मेथड रेंज फ्रॉम 2 to 9 मिनट. ठीक है, तो आपका नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो होता है ना इस मेथड के जरिए से आपका क्या है, 2 to 9 मिनट. मैं आपको शो करती हूँ. जैसे ये ब्रेक कर करके ना रखें, ये यहाँ से स्टार्ट किया था. ठीक है, देन आफ्टर 30 सेकेंड, फिर उसके बाद ये, ठीक है, और फिर अभी भी वो ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जो एक पॉइंट आएगा जब आपका फिब्रिन ब्रेक करेंगे तो बीच में क्या होगा, फिब्रिन थ्रेड पड़ा होगा, तो उस पॉइंट पे आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर लेना है एंड यू विल नोट द रीडिंग. एंड बाय दिस मेथड द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज 2 to 9 मिनट, क्लॉटिंग टाइम इज 2 to 9 मिनट. जैसे ये आपके प्रैक्टिकल जर्नल में भी शो किया गया है. ये फिगर 14.1 जो है उसमें क्या है कि देयर इज, आपने उसको प्रिक किया है फिंगर को और उसके बाद क्या है कि आपके कैपिलरी ट्यूब फिल कर रहे हैं. ठीक है, जब फिल हो जाएगी फिर आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स. और टाइम आपने जो है ना तभी ही नोट करना शुरू कर देना जब आपका ड्रॉप ऑफ ब्लड अपीयर हुआ है. ठीक है, ड्रॉप ऑफ ब्लड अपीयर हुआ है, आपने कैपिलरी ट्यूब फिल की है, तो उस वक्त से आप टाइम नोट कर रहे हैं. फिर आफ्टर एवरी 30 सेकेंड आपने क्या करना है, उसको ब्रेक करना है. और ये वाला एक जो पॉइंट है, ये नीचे वाली जो डायग्राम है जिसमें एरो शो हुआ है, दैट इज अ फिब्रिन थ्रेड. ठीक है, फिब्रिन थ्रेड इस तरह अपीयर होता है विद इन द ब्रोकन एंड ऑफ द ट्यूब्स. जब आप आएंगे यूनिवर्सिटी में वापस तो ये वाला प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करेंगे, यू विल सी द फिब्रिन थ्रेड. ठीक है, तो इस तरह का आपका फिब्रिन थ्रेड आता है. देन इज द प्रिकॉशन. Aseptic technique should be followed. The prick should be deep enough to allow a good sized drop of blood to be formed. After the capillary tube is filled, it should be held between the palms of hands to maintain its temperature. ठीक है, अगर temperature maintain नहीं करेंगे तो उससे false reading आ जाती है. So what is the clinical significance? Clotting time is prolonged when there is deficiency of clotting factors. If it is prolonged to more than 10 minutes, the detailed investigation should be carried out to find the missing clotting factor. ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि आपका